Hi, everyone, and welcome you all to this evening again. And thanks to Mr. Rayat who invited me. So, before going forward, I would like to introduce myself again. जैसे आप सबको पता है कि I'm a director of Asia Pacific head of Expo. So, I met a lot of people, you all, in many during this year or this past year. Because before I was focused in US, in Europe, so hardly any people see me or meet me. Yes, Mr. Ryan asked me regarding the starting of Expo. XPO.ru. When you are associate in 2020, 18, As you know, that in 2016 it started, and right? it goes global in the 2017. Hmm. Then in 2018 I joined it. At the time I joined it, it was focused in the Russia and in the Europe. So that time I would be busy traveling from Russia to Europe to a lot of country. So at that time they are focused only from IU fund. Dire dire we are increasing all the possibility of all the possible trade in this business in this expo. As you know, we have three main business in our expo. First is Expo IU, Expo Fund, and Expo Market. So these all three belong to the same company. It's just a different route of the making the money. You can understand that. And also thanks to all the investor here who's presented here that they trust us and they give us the opportunity to provide them and to prove them that we are the one of the best and we are trying to be better whatever possible way we can. So let me tell you something about this expo. We usually there is one more thing that I would like to introduce the main hero of our expo where index manager. Yeah, index manager hacker. Who are they? What are they? How are they? And how they work. Index manager, they are a person whom we expo recruit personally. Their background is from the very strong financial analysis, from hedge fund analysis. They are the person who is very difficult for us to find with the knowledgeable. इन लोग के पास इतना समय होता नहीं है पहले क्योंकि they are working there in and out so that XPO can generate profit maximum from them. ये बंदे कई जगह से आते हैं यूरोप से साउथ अफ्रीका यूएस रशिया मलेशिया a lot of place you can say और ये लोग our recruitment and our process that they have to go through is very difficult. It's like like 100,000 people, it would pass only one people. So it's a very difficult job for me too, and a very difficult job for this index manager too. The person who manage and control and analyze all the market possibility to explore so that you can sleep well in your bed. No need to worry about all your investment. So that's what we are trying to do, and we are doing. I think so. We are doing it good now, and we will be better in the future. Or you, I would like to give you one in, incident. अगर आप सबको याद है कोविड में as you know all the market crash. Yes, sir. बिल्कुल. Everybody is facing a huge problem with the financial with the business. लेकिन we expo we make a profit out of the Very blue. super. So I would like to thank this our index manager, our hero, who worked so hard, who analyzed all the possible way so that we expo can generate profit. It's not much, but still we generate profit compared to others who always go loss during that period of time. और Right. True, sir. तो मैं चाहता हूँ कि I just would like you all just digital clap to this wonderful. Index managers, right? So this is all I would like to say. If you have any more questions, would you want to ask me? I'm willing to So give you. right now you asked that you findings these index managers, right?
So Yes. they are coming from मतलब various places, मतलब various states, like other countries, and you find, or Yeah. they can join directly to the XPO. No, 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 no. It's not easy to join in this position. Okay. Usually, we are headhunt from different country around the world. Okay. Yeah, we always go to different country with a different big company, and Mm-hmm. we are try to pull them to us so that Mm-hmm. we have the best person who's working for us, who's taking care for us. So it took time. That's why you never see me or nobody see me. Is because I have to fly from one place to another for a headhunt. So this is a main इन thing. फ्यूचर हम कभी कोई इंडियन इंडेक्स मैनेजर भी देख पाएंगे सर? You have to be one in a million. थैंक यू Very सो difficult. I'm telling you. You can मच. try. I'm not saying that it's not possible, but हम्म. it's very difficult. You can try, but you will have to have a really strong background about the financial, about the hedge fund, about a lot of things that we recruit. There is a lot of process that not only a day. You have to pass a process at least 6 months. Then only we recruit. तो रोहिणी मैम, इनका कहने का मतलब ये है कि आपको एक बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना जरूरी है। और बहरहाल अगर आप इस चीज को संभाल सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, यू हैव टू बी लाइक मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस, और काफी सारी चीजें बताई जैसे। सर, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि यू नो वी आर इंडियंस एंड वी आर वेरी नाइस पीपल्स, राइट? सो हमारे हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा आता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। और एक नया इंडेक्स मैनेजर, जब जब इंडेक्स मैनेजर लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद में उसका जो प्रॉफिट है कभी ज्यादा आता है और कभी फिर वो मतलब कम हो जाता है। जैसे अभी आपने बताया भाई, कोविड टाइम के अंदर आई एसोसिएट इन 2021, सो Mm-hmm. इन द मिडल ऑफ कोविड। तो उस समय जो रिटर्न था, मैं आज देख पा रहा हूँ वो रिटर्न लमसम मुझे उसके अकॉर्डिंग बराबर मिल रहा है। लेकिन आपके नजर से आप क्या देखते हैं? जैसे आपके पास इंक्वायरीज भी आती होगी, लोग दे राइजिंग टिकट्स ऑल्सो, जनरेटिंग टिकट्स ऑल्सो। सो आप उनको कैसे मतलब देखते हैं सर? So first of all, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, we are into the market. So जितना भी generate profit होते हैं या ऊपर या नीचे, this is all depend on the market. We are not controlling the market. We are going with the market. So you ओके। have to understand this thing. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में हो। एंड आवर आप मनी इज आप, सेफ। आप खुद मार्केट में हो। आप We are market. ठीक है? राइट। Don't worry about your money. अगर सेफ नहीं है, then how can we possibly generate a profit and provide to all or more than million people every राइट। month, every day? राइट सर। मैं बताना चाहता हूँ कि सेफ है, इसलिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। राइट। It's a long term. You have to understand. It's different, as you know. Are you fund and market? It's totally three different category. So you have to understand each and everything well. Like in, I guarantee you, you can sit, relax, and wait for the profit. कहीं भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में. क्या That's I बात! confirm. सुपर सर, अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल, बहुत ही, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई सारे राज्यों में, कई सारे कंट्रीज में, इनके जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें भी जाता हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं एक्सपीओ की एक अलग झलक दिखती है, एक Hmm. विश्वास दिखता है कि इसकी यहाँ प्रेजेंट होती है, ये यहाँ प्रेजेंट भी है। जैसे रोहिणी मैम और हम कई जगह गए हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे हांगकांग गए, ठीक है ना? और वहां पर हमने देखा कि यू गाइज एसोसिएट विद द बोर्ड, द होल स्टेज, राइट? आपका Uh-huh. पूरा स्टेज था। एंड वीकेएफएक्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज विद द प्राइजेस ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर अवार्ड 2025 ऑल द वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर एक अपने आप में एक अवार्ड लेना एक बहुत ही काबिल तारीफ सर। उसके बाद में द बेस्ट आईबी परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का प्रेजेंट है कि आने वाला फ्यूचर एक्सपो के साथ एज अ करियर हम काम कर सकते हैं, राइट? You can, certainly you can. राइट सर। इन बिजनेस में आपको बहुत मिलेंगे यो नेगेटिव थिंकिंग. ये सब आपके ऊपर है. As long as you stay positive, as long as you stay focused, nothing is impossible in Expo. सर थैंक यू सो मच, आपने जो बातें बोली है वो हमारे लिए गोल्डन वर्ड्स है।
और मैं चाहूंगा तहे दिल से सभी हमारे जितने भी साथी इनको सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से सर के लिए। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस Thank you. टाइम Thank Yes, you सर, we very थैंक यू much. सर। Lovely. हेलो सर। Hello, Mr. Rajat. How are you? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर वंस अगेन। Pleasure. Pleasure seeing you again. Actually, it is quite nice. The last time we met, it was quite interesting, and I was waiting to do it again. Actually, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच and appreciated. So we can give you, Rohini ma'am can ask some questions because last meeting have done and some people's having a small questions. So shall we start? of Okay. course, always questions to Okay. ask in our field. Always new information to give and to get. गिव मी अ सेकंड सर। साथियों, मैं बताना चाहूंगा तो अभी सर थोड़े सीरियसपन भी है और थोड़े से मजाकिया भी है, लेकिन मजाक करते हैं सीरियसपन को दिखाते हुए। तो जब भी मैंने इनसे टाइम लिया है तो इन्होंने मेरे को हमेशा बोला है कि ठीक है मैं रात को 12 बजे फ्री हो जाऊंगा, लेकिन मैं कौन सी कंट्री में होऊंगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज ये अभी रिसेंटली शायद तक दुबई है, तो इनका जो टाइम मिला वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये ऐसी शख्सियत है जो कि जब मैं खुद इनसे बात करता हूँ, काफी लंबी बात होती है, मैं भी टाइम लेता हूँ, और उसके साथ ही जब हम बातें करते हैं तो कई सारी नई चीजें मेरे को समझ में आती है। और मैं सीरियसली चाहता हूं कि सर जो बातें मुझसे करते हैं वो हम सब साथियों से करें। आपका बिलीव लेवल जैसे मेरा तो 1000% है, तो मैं चाहूंगा आपका 999 तक जाए इजी वे में सर से बात करके। रोहिणी मैम प्लीज कंटिन्यू मैम। thank you, sir. So, a very warm welcome, Mr. Tobias, once again on board. Welcome to you too, Mr. Haney. Yeah. Sir, I have two questions for you. First question related to indexes, and second question related to the risk management. So, first question, in Zeno portfolio, why are we using the Forex indexes rather than Forex pairs? The person who asked this question is very smart. Thank you, sir. All right. If we would start everything from the beginning, first of all, I will introduce myself to the people who are visiting the first time. My name is Tobias Weber, and I am the Vice President of the Forex Operations of the XPO. For this question, it is actually quite interesting to ask, and the answer is quite long. I would try to give the short answer as I can. Now, what is the indexes? Let's say now the indexes is multiple pairs in one basket. In a very simple way to say it, this basket includes many pairs together. So, what we are doing with it at XPO, so we can make the best profit for the clients, our clients can get the best profit possible, is exactly that what we are doing. So with multiple pairs, which is means one index or multiple indexes, we are increasing the profit for the clients incredibly. So with this technique that we are using, and with this precisions and studies with our managers, with our analysis and our AI systems and all that, we are coming to the best indexes, let's say 3 or 5 or 6 indexes for this day or for this deal, and we are providing it to our clients so they can make the best profit with the included deal. Of course, it is sometimes this way is better in Forex specifically. Now, as to our studies goes, we know what is the best time to use an index and what is the best time to use a pair. And this is what we are providing for our clients. Of course, with the help of the AI and the human manager or the Forex manager that assigns to every client.
I hope it's clear, Mr. Rohini. Yeah. Yes, That's sir. that's very good. I liked your answer. Profit incredible. Really incredible profits we are earning with the Zeno portfolio. That statement I really that hits the investor. Sir, the next question: what is the most important thing about the risk management, and why Can you it's one of the repeat, most important thing in the forex industry, especially in the forex industry? repeat the question, please? I'm sorry. About the risk management, why it is one of the most important thing in forex industry. Right. Well, risk management is the absolute most important thing in any investment, specifically in the forex investment. Now, without the risk management, then how you would protect your money? How we would protect our clients' money and our investments in XPO at the same time? And well, that's what we are trying to do. Now, risk management is included in specific analysis that we are doing. Now, it's included in all the majorities, in all the sections of XPO, in the Forex, in the crypto, in everything. And that's what we are doing. Uh, the risk management is very important because all our plans, ideas, and the future things that we are doing in XPO, it all goes in one thing: to be here in the future. And to be here in the future, we need to keep our investments, right? We need to keep our investments. We keep it with our risk management. These risk managements, we are doing it so we can protect the assets of our clients and to make the best profit for our clients with the lowest possible of risk. This goes also on how we are using the indexes. Sometimes we are using indexes because, as our analysis shows, that using an index in this deal, it is much better to use a pair as a profit and as a risk management. And that's what we are looking for. Make a highest profit and for the lowest risk possible so our clients can be safe, we can be safe, they make money, we make money, they are happy, we are happy. We are a big family, as we say here. So everything here, it goes like, of course, everybody knows the classic music, the Beethoven, the Mozart, the Vivaldi. You know, when you're listening to these symphonies that goes around, you're enjoying it, you're going around with it. It's exactly the same, you know, with these deals and analysis that we are doing. It's like a symphony. We are enjoying it when we make something right. We enjoy it. We go around with it and we enjoy it. So that's what we are trying to do here. Super. I'm just remembering one statement when you're saying enjoying. So you do what you love. It was, Exactly. yeah. So this is really true. This is matching with the principles of XPO. Very brilliant and very positive answer. We got it about risk management. So thank you so much once again, Mr. Tobias. And yes, sir. So, basically, what do you call index manager? The name, when we talk about index manager, what do you call the name? That your loving name. That day we talk about the indexes, you say, no, no, this is not an index. These are engineers. These are engineers, managers. Correct. Engineer manager. So, And what they are doing, their work is very important. yeah, Imagine that you are connecting more than three or four, even 10 pairs together at the same time, right. and you are creating an index. So they are basically a manager. It's like an engineering manager that are doing something so great with the very complicated algorithm that is connecting it together, putting it the right place at the right time. Wow, super. So, sometime when you meet index managers, when you meet index managers, so
you never asked like why the profit is goes down and why you don't give it more profits like this. Because there is a reason, and when I reviewing their deals, Mm-hmm. I understand it is either the profit is low, Mm-hmm. but the risk management is very high, which is Mm. understandable, True. or now if the engineering manager was for some reason have a low risk, yes, a low risk and a high profit, now this is unacceptable. Mm. The very high profit as much as you can with the lowest risk possible. If you cannot, if the forex manager or forex engineer cannot, or sorry, index engineer cannot apply this method, then we always focus on the lowest risk possible. Even if the profit was low for some deal or some day or some week, it will not stay like this forever, Wow. because main goal is saving and protecting the money. You cannot make money if you have no money. Seriously. True, sir. True. So Yes. one of the very beautiful answer when you say that we are enjoying, you enjoy, we enjoy, you earning money, we earning money Every is that job. everybody, Exactly. yeah. So we are in Expo. You also earn money and we also earn money. Super, sir. And thank you so much for your precious time. And once again, मैम आपने इनके सारे जवाब क्यों बिकॉज वी हैव टू ट्रांसलेट एवरी ईच एंड सिंगल वर्ड्स सर के जो गोल्डन वर्ड्स है वो अपन को हिंदी में भी बताने हैं राइट सो नाउ वी ऑन द Body, जी now on the series of the interview we are asking to Marcus sir we are welcoming you once again on the Zoom session and thank you for Yes, coming hello. on a short period you can come here and Tobe sir thank you so much for coming here and your golden Thank you a words. lot. Appreciate, sir. Thank you so much, sir. Have a good day. Thank you, sir. Or eat in Indian time. Yeah, okay, sir. thank you so much, Bye bye. Bye bye. sir. All right, so can you see me right now? Yeah, sir. We can see you right now. All right, that's perfect. So, first of all, we have last time we got a lot of questions with you, and on the behalf of these questions, that question, sorry, we having some more questions regarding XPO markets, regarding managers, regarding the how we can trust in XPO. So, Rohini ma'am, please, can you carry on the about the questions? Welcome, Mr. Marcus, on board once again. Welcome. Thank you. First of all, many new people have joined today, so they also want to know your capacity you are holding in Zeno portfolio. What capacity you are holding? All right, first of all, good evening, everyone. I'm really happy to be here with you again and to talk to you, all of you, and answer the questions that you are interested in. So, first of all, my name is Marcus Schneider, and I'm the head of brokerage operation at XPO Market. And of course, it's always a real pleasure to be here with you guys and to be a part of XPO and to answer your questions today. So yeah, and I'll be open with you guys today to explain and to talk with you about everything you guys ask. Thank you, sir. So, sir, just a short question for you. Okay. In a market that's constantly evolving, how can a brokerage truly stand out and earn long-term trust from traders and partners? So, first of all, about the trust, this is the very, very important. I would say it's the most important thing right now in this sphere, especially because right now, as you guys know, there's a lot of companies which provide different forex activities, which is not regulated. Sometimes they are regulated. Sometimes they use not very good technology or not very good
risk management for their clients or for the traders which they are trading with them. So the most important thing right now is that to provide the client, which we believe that providing the trader with a support that they need. First of all, they need analysis. They need a lot of um, specific foundations that they can use to trade perfectly without using a very high risk management with as my colleague Tobias has said. So first of all, transparency is very important, which is the basic or the how to say it, like explain it in a correct way. It's the best way to connect between the trader and the brokerage company. Transparency makes the trader feel comfortable in that way, and in that way he will earn our trust, and we earn his trust, and in that way we can build a very good connection with our clients. And the second thing, when any clients come to us and they want to trade with us, when they see the spread that we provide, when they see uh, the support team which is working 24/7 all the time, answering these questions, helping them with their problems if they have any issues in their account or anything, this is all will be connected in one base thing, which is transparency and trust between the client and the trader and the brokerage company. So I think this is one of the most important thing, which must be in each company which we are successful in XPO. Yes, I truly believe, sir, that transparency is very important, and Zeno Portfolio is providing us that transparency. So thank you so much, sir. No more questions. You have answered all the questions last time also, and in one single question you have answered all major Alright, thank you. questions. Thank you Thank so you. much. No problem. Thank you. Thank you, Marcus sir. Thank you so much for coming again. And Thank on the behalf of short notice, I just message him, sir, you have to become because we have a small question for you. So thank you so much, sir, coming here. Thank you, sir. Appreciate. No problem. Thank you. Thank you for your time, guys. Okay. ये सेशन जो आप चला रहे हैं, इस सेशन से तो ये समझिए कि सवाल ही नहीं है, लोगों को अगले 10 साल का फ्यूचर भी नजर आ रहा है अभी। बिल्कुल। एक सवाल होना अलग बातचीत होती है, लेकिन साथ साथ जो फ्यूचर नजर आ रहा है, एक चीजें समझ में आ रही हैं। और मैंने पिछली मीटिंग में भी एक बात बोली थी सर, बिना हम एक्सपो के किसी भी स्टाफ का या मैनेजमेंट की हेल्प लिए बगैर इंडिया में 10 लाख का कारोबार खड़ा कर लिया। अब हमारे साथ मैनेजमेंट भी उतर गया है। तो जो आपका एक सपना है कि सर हम 1 CR पहुंचेंगे, तो सर वो 1 साल नहीं लगेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ महीनों में पॉसिबल हो जाएगा। क्या बात है सर, जोरदार तालियां। मैं जरूर चाहूंगा रोहिणी मैडम से, क्योंकि सबसे पहले आज आपने वो सवाल किए जो हर दिन परेशान कर रहे थे। ये प्रोफाइल लेके इतने सारे सवाल हैं, शायद मेरे को नहीं लगता कि मैं ही फेस कर रहा हूँगा, जो भी लोग टीम को हैंडल कर रहे होंगे हर लीडर फेस कर रहा होगा। बिल्कुल। एक चीज सबसे बड़ी बात है रजत सर, हमें क्या चीज आती है कि लोगों को पैसा भी सेफ चाहिए और लोगों को प्रॉफिट भी फिर है ज्यादा ना चाहिए। इच्छा अनुसार चाहिए। प्रॉफिट तो भी। ये कई बार हमने पैनल पे समझाने की कोशिश करी, लेकिन आज आपने मैनेजमेंट से ही पूछा, तो मैं सबसे पहले रोनी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थोड़ा हम सब लोगों को समझा पाएं कि उनके जवाब क्या थे। और उससे उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा सर। प्लीज। जब इनका मुझे टाइम मिला था, तब इन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि कोई कमी रह गई है, मतलब कोई ऐसी चीज, बिकॉज दे नो अस, राइट। उन्होंने हमारा कारवा देखा है, हमारी टीम देखी है, हमारे जज्बात देखे हैं, हमारा जुनून देखा हुआ है। जैसे विजय सर ने आपको स्टेज पे बोला था कि भाई इतने सारे लोगों के साथ में आप आते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हम भी एशिया की तरफ मूव कर रहे हैं, इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे ये चीजें पूछनी चालू करी और ये चीजें बताई कि सर ऐसा कुछ नहीं है, कि भाई हमारे लोग एकदम क्लियर है, दे आर टोटली बिलीव इन एक्सपीओ, राइट। ये हमारे सारे लोग बिल्कुल आंख बंद करके एक्सपो पे बिलीव करते हैं, 1% कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के मन में भी ये शंका रह जाए, ये कहीं मतलब एक कहते हैं ना भाई, चूक रह जाए कि सर ने को मैंने ये सवाल पूछा था और सर ने आगे तक वो बात करी कि नहीं करी। तो उस व्यक्ति के लिए, जानते हैं कौन है वो व्यक्ति, वो सब जूम पे भी होंगे या फिर यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे होंगे। उनके सवाल जवाब जितने भी थे, मैंने उनके लिए ताकत लगाई, मैंने इनका वापस टाइम लिया, और टाइम इन्होंने पहले जो टाइम दिया था वो मुझे दिया था 22 का। तो मैंने कहा सर उस दिन तो हम पटाखे फोड़ेंगे भाई, हमारी तो दिवाली है।
हम तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो कहते ओके ओके हैप्पी दिवाली। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है आप 24 ले लो और उसके बाद में हम इसको जल्दी से जल्द क्लोज भी करेंगे। इनके उस दिन जो मैंने इनको जो सवाल पूछे थे कि भाई, उन्होंने पूछा कि भाई क्या रहेगा ऐसा, हम अभी बता देते हैं। तो मैंने इनको पूछा था सर, फंड को लेके, सिक्योरिटीज को लेके, हमारे फंड की क्या सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर एक्सपीओ ने क्या कार्रवाई करी हुई है, एक्सपीओ ऐसा क्यों बोलता है। जहां इन्होंने एक बड़े ही, जैसे तोबियस सर ने बहुत ही प्यार से बोला, वी इंजॉइंग। और रोहिणी मैम जैसा आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को करते समय अगर वो एंजॉय कर रहा है तो रियल में वो पैसा कमा रहा है। अगर आप एक्सपो करते समय, सर प्रवीण सर आपका माइक ऑफ है, अगर आप एक्सपो करते समय अगर आप परेशान हैं, आप किसी दुविधा में और आपको ऐसे लग रहा है यार नहीं करना चाहिए, सर छोड़ देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है तो सर गिटार बजाओ। अगर आपको लगता है मुझे बांसुरी बजानी अच्छी लगती है, बांसुरी बजाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपो करने में मजा आ रहा है तो मजा, वो जीवन में वो मजे लेने चाहिए। जो भाई, कई बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, संतोष नायर जी है, वो भी कहते हैं कि भाई जो काम आपको करने में मजा आ रहा है और उसी काम से आपको पैसा आ रहा है तो आपको वो काम सालों साल, उम्र दर, अपने बच्चे, अपनी पीढ़ियों तक को वो करते रहना चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मैं आप तीनों के ऊपर ही बातें छोड़ता हूँ। रोहिणी मैडम से अब आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो रोहिणी मैम, आप इनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी करके आपको देना पड़ा था। तो सर एक थैंक यू मिनट में सर। इंटरप्ट करूंगा। जी सर। संतोष नायर सर बोलते हैं कि अगर किसी काम को आप प्यार करते हो हम्म। और उस काम को आप अच्छे से जानते हो हम्म। और अगर उस चीज से आप पैसे कमा रहे हो, अगर राइट। 3 सेट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है और तीनों में टिक है, हम्म। तो आप समझ लेना भगवान ने आपको उसके लिए धरती पर भेजा है। क्या बात है। तो सर देखो, एंजॉय बहुत कर रहे हैं, एक्सपो कर रहे हैं, रामानंद ठीक सर है ना। इसमें एक तो ऐड कर लें, आपके तीसरे पॉइंट में ऐड कर लें, जिसमें इंजॉय आ रहा है वो काम नहीं है सर, वो एंटरटेनमेंट है, उसके साथ आपकी अर्निंग है सर। अर्निंग है। राइट। क्योंकि काम से हमेशा तकलीफ होती है और इंजॉयमेंट से हमेशा आदमी और इंजॉय करने की और कोशिश एंजॉय करता है। करता है। काम अगर खाना खाना भी जिस दिन हम काम समझने लगेंगे सर, उस दिन ये भी तकलीफ समझ में आएगी। इसलिए वो हमें तकलीफ नहीं, वो हमारी जरूरत है। तो हम, आप अपने चौथा पॉइंट ऐड कर ले, जिस जिस चीज में हमें एंजॉय आ रहा है वो काम हो ही नहीं सकता हो सर। ही नहीं सकता। वो एंटरटेनमेंट है अपने लिए। और आज सर मैं खुद देखता हूँ, कितनी दफा मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। आज रियल में लोगों ने दिवाली, मेरे को साफ बोला है सर, इस बारी दिवाली एक्सपो वाली मजा आया। थाउजेंड्स मैसेज है सर, कोई 100-200 बोलने तो अलग बात है, थाउजेंड्स मैसेज है सर ना। सर जिसको रियल अगर, में हाँ फोन को अगर मैं उठा के देखता हूँ जैसे ही, तो व्हाट्सएप के ऊपर दोनों, व्हाट्सएप बिजनेस और जो पर्सनल है, 999 ही लिखा आता है। 999 नहीं आता, सही है। 999 ही लिखा आता है। हालांकि मैं व्हाट्सएप वालों से बात करूंगा भाई, 9999 कुछ करके आया तो, लेकिन आता 999 ही है। तो लेट्स वी स्टार्ट, बिकॉज हमारे पास में टाइम भी बहुत कम है और आज रोहिणी मैम को सुनना चाहेंगे कोई क्वेश्चन जो, मैम पूरा बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आपने पूछे उनसे और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, वो उसको उसके ऊपर एक बार हम चर्चा करेंगे। सर रामन सर, आवाज आ रही है ना? इंटरनेट बिल्कुल मुझे बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर, है, आ रही है बिल्कुल मैम, आ मैम, रही है। बिल्कुल आ रही है। तो सबसे पहला मुझे आज सबसे जो अच्छा लगा, सर ने जो क्वेश्चन विजय सर से पूछा, मुझे उनकी पूरा, मेरा एक पेज पूरा भर गया है और पीछे वाले पेज में भी मुझे लिखना पड़ा, इतनी शानदार बातें उन्होंने करी है। सबसे पहला इंडेक्स मैनेजर्स के बारे में पूछा था। रामानंद सर, आपने भी नोटिस किया होगा कि इनको रिक्रूटमेंट किस लेवल पर किया जाता है। कई फेजेस इनको क्लियर करने होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टाटा हो गया, ये हो गया, 7 फेजेस 8 फेजेस के एग्जाम क्लियर करने होते हैं। वैसा ही विचाई सर ने बहुत ही बखूबी ये बात को कही है कि जो इंडेक्स मैनेजर्स होते हैं वो कोई यूरोप में बैठा है, कोई अफ्रीका में है, कोई कहीं है, और इनको लाना, इनको एज अ इंडेक्स मैनेजर एक्सपीओ में लेकर आना, ये इनको काफी सारे प्रोसेस क्लियर करने होते हैं। ये किसी एग्जाम से, किसी रिक्रूटमेंट कंपनी से कम नहीं है। आप क्या कहते हैं रामानंद सर? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिसिस, मैं शॉर्ट, क्लियर कट एंड क्रिस्पी बात करूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व की है उसको मैं डिलीवर करना चाहता हूं कि इंडेक्स मैनेजर के अंदर ये लोग क्या देखते हैं। दे शुड बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, राइट। मतलब कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में फाइनेंशियल एनालिसिस का कंपोनेंट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, somebody is from यूरोप, somebody is from साउथ अफ्रीका, यूएस, मलेशिया, ऐसे सर ने एग्जांपल्स दिया, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से। और एक अच्छा फिगर सर ने बताया कि आउट ऑफ 1 लाख पीपल, है ना, आउट ऑफ 1 मिलियन सर ने बोला, 100 के उन्होंने बोला, यस, दैट मीन्स 10 लाख, 10 Yes. लाख लोगों में से ओनली 1% होता है जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, क्राइटेरिया को ओवरकम करता है, एंड फाइनली ही बिकम्स द इंडेक्स मैनेजर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज को दर्शाता है कि एक्सपीओ का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रिंजेंट है, और ये इंश्योर करता है कि भाई हम लोग जो है एकदम सही प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर कि हमारे पैसे के साथ कोई मजाक नहीं हो रहा है। एक बहुत ही तरीके से, एक बोलते हैं ना सूचीबद्ध तरीके से, इनके कुछ कुछ नॉर्म्स है उनके। हम तो कुछ भी मुंह उठा के फोन कर देते हैं रजत सर को या किसी को भी, हमारे पास फोन आता है, अरे इस मंडे तो प्रॉफिट कम आया। भाई साहब, आपके प्रॉफिट के लिए वो वहां नहीं बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। उनका पहला प्रायोरिटी सर ने क्या बोला, उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि इफ यू कैन सेव मनी देन ओनली यू कैन मेक मनी। तो आपके पैसे को सेफ रखना जो है ना उनकी पहली प्रायोरिटी है। और मुझे नहीं लगता रजत सर इससे बड़ा और ज्यादा कुछ चाहिए भारतीय समाज को कि आपका प्रिंसिपल सेफ है, राइट सर? अगर Yes. आपको कोई कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पर सेफ है, हम बाद में भी पैसे बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग बात है। यस रोहिणी मैम, और कंटिन्यू करिए आप। यस, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली मिस्टर विचाई ने कि हम लोग इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं और लोगों की नियुक्ति, जो इंडेक्स मैनेजर्स की नियुक्ति है, वो इतनी डिफिकल्ट होती है सो दैट यू कैन स्लीप वेल, आपको चिंता नहीं हो, आप आराम से सो सके। ये बहुत ही टचिंग उनका स्टेटमेंट था और इस बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। और एक चीज बहुत अच्छी उन्होंने बोली, कोविड टाइम में वी मेक प्रॉफिट, भले 2%, सालाना देखे तो 24%, नॉट बैड, नॉट बैड। तो 24% का भी अगर वो हमको सालाना दिए हैं, अगर कोविड टाइम में, उन्होंने एक चीज बोला, मैच नहीं होता है कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन से, लेकिन इंडेक्स मैनेजर वर्क वेरी हार्ड टू गेट गुड रिटर्न्स, ये उनका स्टेटमेंट। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ने कि कभी इंडिया से कोई होंगे, तो उन्होंने बड़े मजाकिया तौर पे कहा वो रजत सर होंगे। और मैं उस समय सोच रही थी अगर इंडिया से कोई इंडेक्स मैनेजर हो जाए, घर के आगे सारे एक्सपीओ वाले खड़े हो जाएंगे सुबह शाम। सही बोल रहे। ये सच्चाई है। रोहिणी मैम, उन्होंने बताया कि हाउ दे रिक्रूट, है ना, उन्होंने इस बारे में बताया ना कि वो इंडेक्स मैनेजर को कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। सो ही सेड ऑलरेडी द इंडेक्स मैनेजर्स आर विद वेरी बिग कंपनीज, राइट? ऑलरेडी जो इस तरह की एक्टिविटीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल में जो कंपनीज कर रही हैं, उनके साथ ये लोग एसोसिएटेड होते हैं, वहां से एक्सपीओ पुल्स देम, राइट? ये सोचने वाली बात है। सी, बिहाइंड द कर्टेन हमें समझना पड़ेगा, ऑलरेडी कोई कहीं पर काम कर रहा है, वहां से अगर वो एक्सपीओ को ज्वाइन करता है, इसका मतलब एक्सपीओ के अंदर विजन, एक्सपीओ की ट्रांसपेरेंसी, एक्सपीओ के साथ काम करना जो चीज है, वो उस फंड मैनेजर को, इंडेक्स मैनेजर को बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, देन ओनली ही कैन स्टे हियर। तभी तो रिटेन कर पा रहे ना लोग। रिक्रूटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंबरसम होता है रिटेन करना अच्छे लोगों को इन कॉर्पोरेट्स, जो कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि कॉर्पोरेट में आप अगर किसी को रिटेन करते हैं। यस सर, प्लीज। सर, हरि पुरुषोत्तम जो कि मेरे अपलाइन है, उन्होंने मेरे को सन 2021 में बताई थी ये बात कि ही एट दैट प्रेजेंट टाइम इन 2021 ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीबीएस बैंक। कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। डीबीएस बैंक सिंगापुर का एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, और इंडिया में जो है सचिन तेंदुलकर उनका मतलब स्पॉन्सरशिप करते हैं, जो भी है उनका मतलब एज ए एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में उनके पास में उससे पहले जब डीबीएस बैंक के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे पहले 2016 में ही इज नॉर्मली वर्किंग इन जेपी मोर्गन बैंक में जॉब करते थे वो, ठीक है ना। उनकी अगर शिफ्ट सुनता था मैं, मुझे हंसी आती थी। वो कहते मैं पूरे हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 दिन ऑफिस जाता हूँ और 4 दिन मैं घर पे रहता हूँ। मैंने कहा 3 दिन जाते हो? कहते 3 दिन 30 दिन बराबर होता है, वो अलग बात है, लेकिन जाता मैं 3 दिन ही हूँ, तो पूरे वीक के अंदर। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को बताया डीबीएस बैंक में भी जॉब करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते अब मैंने डीबीएस छोड़ के मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड मलेशिया के साथ में हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपने आप में भी बहुत बड़ा बैंक है। जब अब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे एक बैंक बताया, कहते आज की डेट में मैं जुबिल्स बेर
उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कहा यार ये बैंक मैंने कभी सुने नहीं। कहते ये सारे बैंक जितने भी बैंक है ना, डीबीएस, जेपी मुर्गन, जुबिल्स बेयर और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये तीनों बैंक कभी किसी पर्टिकुलर बंदे का खाता खोलते भी नहीं है। मैंने नहीं देखा कि भाई आप उधर जाओगे और वो जैसे अपने एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आपको फोन आ रहा है सर आपका बही खाता खुलवा लो, सेविंग खुलवा लो या क्रेडिट कार्ड ले लो। इन बैंकों के फोन नहीं आते, दे आर हेज फंड्स। तो वो जब वो मुझे बातें बताते थे, मुझे बड़ा फाइनेंस के अंदर बड़ा रुचि रहती थी कि उनसे मैं सुनता था वो बातें, ठीक है ना। जिस जमाने के अंदर हम सोचते थे कि भाई $2000 हमारी इनकम होनी चाहिए मंथली की, वो वहां 30-40,000 मंथ पर मंथ कमाते थे। तो आज उनकी सैलरी 1 लाख से भी ऊपर है, लेकिन उनको ऐसा फील नहीं होता। वो दे ही एंजॉय हिज वर्क। बैंकिंग सेक्टर में कितनी सारी चीजें होती है, कितनी सारी चीजें होती है, वो आज मुझे इनके माध्यम से, मतलब आज नहीं, मुझे कल पता चली थी। तभी मैंने इनको ये बात पूछी कि सर आप उसकी मतलब हाउ यू इंटरव्यू और हाउ यू सिलेक्टेड दीज इंडेक्स मैनेजर्स। कि मैंने सुन ली तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं चाहता था सब सुने। तब मुझे पता चला कि रियल में वो हरि पुरुषोत्तम जी तो बहुत छोटी सी बात कह रहे थे कि मैं इस बैंक में था, डीबीएस में था, मैं ये था। ये जहां से बंदे लेकर आते हैं, ये वो बंदे लेकर आते हैं जिन्होंने कोई इनोवेशन करी हुई है अपने बैंकिंग करियर के अंदर। किसी ने कोई नई इनोवेशन करी है, उस बंदे का नाम एसोसिएट हुआ, उसको ये क्रैप करते हैं, उससे मीटिंग करते हैं, उससे बताते हैं। ही हैविंग लाइक मोर देन 100 करोड़ से ऊपर का फंड उसके पास में इन डॉलर्स, राइट। तो उस बंदे का बैकग्राउंड, उसकी क्या चीजें, उसका क्या माइंडसेट चलता होगा, वो क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, वो सारी चीजें चेक करते हैं। ये तभी बता रहे थे, कहते वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक कंट्री में से एक बंदा मिल गया तो ठीक है, तू तेरे दोस्त को लगवा ले भाई, ऐसा नहीं है। इंडेक्स मैनेजर अक्रॉस द ग्लोब आते हैं। तो वो कैसे आते हैं मुझे कल पता चला था, तभी मैंने कहा नहीं, ये जूम के अंदर मैं जरूर पूछूंगा। ग्रेट, तो बहुत ये अच्छा चीज किया है, सर आपने। और ये आप सब साथियों के लिए, आप सब लोगों के लिए, कि रियल में आज हम फ्यूचर देख रहे हैं एक्सपो के साथ में। आराम से बैठ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें मैम एक चीज और है सर, जी, मतलब 10 लाख में से कोई एक कर पाता है, कोई राइट राइट सर। रेशियो ना, छोटा रेशियो नहीं है कि। और एक बात सोचने की सर, हम 2016 से रन कर रहे हैं, आज हमारे पास 35 से 40 इंडेक्स मैनेजर हैं। अगर इतना आसान होता तो 100-150 करने में क्या दिक्कत थी, वो टक टक हाँ, कर देते, बोला कि टक टक आप भी करते थे। आपका भी वेलकम है। 2-4 हो सकता है इंडिया के शामिल हो जाते, बोला हम एक और बात सर, एक बिल्कुल। और बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई 2016 से रन कर रहे हैं 35 इंडेक्स मैनेजर, इनको क्या जरूरत आती है इंडेक्स को सोल्ड आउट करने की? भरे रहने देते हैं, आने दे भाई जितना आ सकता है। हाँ, ये कंडीशन हम तो लगा नहीं रहे, हम इनको इससे ज्यादा फंड नहीं देंगे, ये तो खुद ही लगा रहे ये तो कंडीशन खुद ना सर। लगा रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये एक्सपो बोलता है इनको कि भाई इससे ज्यादा का ट्रेड मैं नहीं करने और दूंगा। सर टोटल इंडेक्स मैनेजर की एक चीज और देखी, 5 से 10% जब फंड बचता है तभी सोल्ड आउट होता है, वो तभी ऐसा सोल्ड भी आउट हो जाते हैं। नहीं फंड वो उसको उसको। मेंटेन करते रहते हैं, उसको मेंटेन करते रहते हैं। मुझे एक पर्सन ने बोला अपनी टीम में से कि जैसे ही कोई फंड सोल्ड आउट होता है ना, तो 6 से 8 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर जो है ना, 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर नया फंड आ जाता है। ठीक है, ये सब ना स्ट्रेटेजी है ज्यादा से ज्यादा फंड लेने का। तो मैंने बोला अच्छा, लेट मी ऑब्जर्व। और ना मैं पिछले 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वेलोसिटी आर्बिट्रेज इंडेक्स सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन अभी तक कोई फंड नहीं आया। मैंने उसको 4 बार फोन किया, मैसेज भी किया, अभी तक वो रिप्लाई नहीं दे रहा है मुझे। नहीं सर, वो तो देखो कहानियां बहुत होती है, कुछ तो लोग कहेंगे, सर लोगों सर का काम है एक्चुअली कहना। क्या है, हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं हाँ। होता है, ये भी। और आपका दोस्त आज फेमस और हो गया, वो मुस्कुरा रहा है, कहते रामानंद सर ने मेरी वहां चर्चा कर दी रजत जी के सामने, परवीन सर के सामने, रोहिणी मैम के सामने। रोहिणी मैम प्लीज, बस मैम आप, नेक्स्ट बस क्वेश्चन। आपने नाम प्लीज, नहीं लेना है, ये ध्यान रखना बस ना सर। नहीं नहीं सर, नाम नहीं लूंगा। चलिए प्लीज मैडम कंटिन्यू करिए। ओके, सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे रिटर्न्स है, मैं जितने लोग आज सुन रहे हैं, ये सबका बहुत बड़ा दुख भरा कहानी है सर। और कि रिटर्न्स जो है हमारे, वो काफी फ्लक्चुएटिंग होते हैं, कभी बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग में ज्यादा है, फिर कम हो जाता है। ये सारी चीजें जो है दिमाग में चलती रहती है। तो उन्होंने, विजय सर ने ये बोला, वी आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट। हम मार्केट पर डिपेंडेंट है, वी कांट कंट्रोल मार्केट, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनके मुंह से बना है, भगवान है, वो कब क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, मार्केट कब क्या करेगा हमें नहीं मालूम। तो वी आर रनिंग विथ मार्केट, वी आर वॉकिंग विथ द मार्केट, हम मार्केट के साथ चल रहे हैं।
बट डोंट वरी अबाउट मनी। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट वो हर अपने 4 लाइन के बाद में एक पंच लाइन जो छोड़ते हैं कि यू कैन स्लीप बेटर, डोंट वरी अबाउट योर मार्केट मनी, वी मेड प्रॉफिट इन कोविड टाइम्स। ये इतनी अच्छी चीज बातें वो करते हैं, और जब वो बोलते हैं सर आप लोग नोटिस करेंगे वो उनके बिल्कुल दिल से निकलती, कोई रटी रटाई बातें नहीं होती है। विचाई सर को जितना मैंने ऑब्जर्व किया, विचाई सर ने हिंदी में एक स्टेटमेंट बोला था, डोंट वरी अबाउट योर मनी आई कैन गारंटी यू। हिंदी में आगे क्या बोला था, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको दुनिया में। रिटर्न मैंने भी लिखा, कहीं कहीं भी नहीं देगा ऐसा रिटर्न, ये मैंने भी लिखा है यार, ये उनका स्टेटमेंट। तो मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो दिल से जो बात निकली है और ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकली है जिन्होंने 2016 से लेकर आपके सामने एक्सपीओ का पूरा हिस्ट्री बता दिया, पूरे के पूरे जो इंडेक्स मैनेजर्स को जो व्यक्ति रिक्रूट कर रहा है, जरा सोचिए अगर वो व्यक्ति वो शख्स अगर आपको ये कह रहा है तो समझने वाले के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई चीज नहीं होगा। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैम तोबियस सर की बात बताओ। मैं उस शख्स से क्या है बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि जूम चलते समय कि जब मेरी इनसे बात होती है तो कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन बाद में पता चलता है कि तो सीरियस नहीं था। वो बहुत ज्यादा मजाक कर रहा था उस बात को लेके। कहते ठीक है वी कैन मीट एट 12 PM। मैंने कहा 12 PM? कहते हाँ 12 बजे के बाद मिल लेते हैं अपन। मैंने कहा कौन से वाले 12 बजे के बाद? आप इंडिया वाले 12 बजे के बाद बोल रहे हो? कहते नहीं 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 नहीं, मैं जिस कंट्री में हूंगा मैं उस 12 बजे के बाद की बता रहा हूँ। मैंने कहा अब ये कैसे पता चलेगा? कहता आपने तो बोला भाई ये टाइम देना है। ठीक है वो तो अलग बात है। मैम बताइए उनके क्वेश्चन और उनके आंसर बताइए मैम। यस, तो मिस्टर तोबियस से जब बात हुई मैंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछा। एक तो आप सब जानते हैं कि हमारा जो XPO.ru में हम लोग फॉरेक्स इंडेक्सेस में काम करते हैं, ना कि पेयर्स में काम करते हैं। उस पर एक क्वेश्चन था और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में था। मैं पूरा ओवरऑल ब्रीफिंग इसका करूंगी। इंडेक्सेस के बारे में उन्होंने बताया हमारे पास में अलग अलग पेयर्स हैं, हम पेयर्स में काम करते हैं लेकिन अलग अलग पेयर्स हैं जो एक ही बास्केट में रखे हुए हैं, मतलब मल्टीपल पेयर्स हैं और एक ही बास्केट में रखे हुए हैं। हम उस पर जो है वो हमारा इंडेक्सेस है, उस पर हम जो है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। और ऐसे कई सारे मेनी पेयर्स। प्रॉफिट इनक्रेडिबल है, मतलब अतुलनीय है। मतलब उन्होंने ये किया, जब हम तुलना करते हैं दूसरे किसी फर्म के साथ, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो हमारा जो रिटर्न्स है, हमारा जो प्रॉफिट है वो इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। सर राइट? रजत सर आपने सुना, परवीन सर सुना आपने। विथ मल्टीपल पेयर्स व्हाट इज द बेस्ट टाइम, मतलब उनका ये पता है कि इंडेक्स जो है किस टाइम पर हमें क्या करना है, ये हमारे इंडेक्स मैनेजर्स को पता है। और शायद इन्होंने ही बोला कि ये दे आर द इंडेक्स इंजीनियर्स, जैसा कि मैं इंजीनियर मैनेजर्स। हाँ मेरी फोन पे बात हुई थी तब उन्होंने बोला, कहते मैंने कहा सर कैन यू टेल अबाउट मोर अबाउट द इंडेक्स मैनेजर? कहते हु द इंजीनियर्स? So he say, मैंने कहा no engineers, it's a index managers. कहता oh I call them engineers. रजत सर एक्चुअली दे आर इंजीनियर सर। इसको गहराई से सोचेंगे ना सर तो समझने वाली बात है। एक ट्रेडर होना एक अलग बात है, और जैसा सर ने बताया कि टेकिंग 3-4 फॉरेक्स पेयर्स टुगेदर, कनेक्टिंग देम टू मेक सम कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स, राइट कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स इस तरीके से बनाना, इंश्योर करना कि कुछ भी हो जाए आपका ये जो हमारा कैलकुलेशन है ना, आपका इन्वेस्टमेंट जो वो लॉस में नहीं जाएगा। सही बात है, राइट। तो ये बहुत ये इंजीनियर का ही काम है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो बोलता है चलो ठीक है इस रोड पर गाड़ी आपकी 200 की स्पीड तो नहीं जाएगी, बट इतना श्योर है कि आप इस रोड को क्रैक नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट सर, ये तो इंजीनियरिंग का काम हो गया ना। यस मैम प्लीज। इसमें एक चीज और है, जब से हमारे इंडेक्स मैनेजर जब से हमें प्रॉफिट दे रहे हैं तब से एक चीज नोटिस भी किया गया है, चाहे प्रॉफिट कम रहा हो लेकिन हर क्लाइंट को कुछ ना कुछ, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही। लास्ट टाइम जब बोला था कि मार्केट क्रैश हो गई है, वार हुआ है, क्रिप्टो वार हुआ है, तब भी चाहे हमें प्रॉफिट डाउन आए लेकिन हमें उस टाइम प्रॉफिट मिले। इसका यही कारण है सर जो अभी आप बता रहे हैं। इसका रीजन यही है कि उसकी मैनेजमेंट है कि कहाँ किस चीज निकालनी, कहाँ
करना है, तो हमें हर परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं क्रेडिट में रखा, ये इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए। कोई बात नहीं सर। कंटिन्यू करिए मैडम प्लीज। Yes. एक चीज बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी कि ये फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो चाहे कोई भी तमाम मार्केट हो, ये एनालिसिस करते हैं। और ये चीज मेरे को याद है कि अपने पिछले मीटिंग में इस वर्ड को एनालिसिस वर्ड ये बराबर यूज करते हैं। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति एक बात को कई बार कह रहा है, मतलब वो बात जो है उसके जहन में है, तभी ये बात निकल रही। तो ये एनालिसिस एआई के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें। और एक चीज जो कि बहुत ही टचिंग थी, रामानंद सर आपने भी नोट डाउन किया होगा कि हमारे जो प्लान्स और आइडियाज होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि हम फ्यूचर में भी यहाँ रह सके। करेक्ट। टू बी हियर फ्यूचर। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारे प्लान्स और आइडियाज ऐसे होते हैं ना कि प्रेजेंट में। ये चीज उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था, सिर्फ हम प्रेजेंट पे काम नहीं करते, हम फ्यूचर पे काम करते हैं। उसी चीज को इन्होंने और बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा। आवर प्लान्स एंड आइडियाज ऐसे है कि हम फ्यूचर में रह सके। प्लस सर हमारे जो क्लाइंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम प्रोटेक्ट करके रख सके। ये दो स्टेटमेंट उनका काफी स्ट्रॉन्ग था सर। Correct. साथ ही Protecting money is rather more important than making more and more profit. Correct. yes, high profits and low risk management not acceptable। मतलब प्रॉफिट तो हम हाई ले रहे हैं, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट हमने लोअर रखा है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। True. लेकिन अगर हाई रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, और लेस प्रॉफिट है जो कि हम समझते हैं लेस प्रॉफिट है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि 3% लेस प्रॉफिट होता है क्या। वो बहुत होता है अगर हम सालाना देखें, बट आदत हो चुकी है 9 से 10% की, इस कारण से मुद्दे उठते हैं। बट बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को कहा है। एंड वी आर एंजॉयिंग इंजीनियर मैनेजर्स। और सही में फिनटेक को अगर हम देखें, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी आ गई मतलब कि इंजीनियर्स वर्ड, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर ये दोनों तो हमेशा ही जुड़े हुए हैं। और फिनेंशियल टेक्नोलॉजी वही फिनटेक है। और हमारे इंजीनियर्स जो हैं, हमारे इंडेक्स मैनेजर्स जो हैं, ये रियली में बहुत अच्छा वर्ड उनका मुझे ये लगा। इवन द प्रॉफिट इज लो, लो रिस्क है, हाई रिटर्न्स है, अनएक्सेप्टेबल। हमारा मेन गोल होता है कि हम अपने क्लाइंट्स के पैसे को बचा सके। सर आपने नोट डाउन किया होगा, मेन गोल इज टू प्रोटेक्ट द मनी, उनका लास्ट का स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी खूबसूरत बात है जहां पर एक अंग मोइंगा है, मतलब एक अंग्रेज हमको ये बता रहा है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही वाले हैं, बाहर भी चलती है सर, ठीक है ना। बाहर भी और भी बहुत सारी कंपनियां चलती है। आप ये सोचेंगे यार वो 2 महीने रिटर्न अच्छा दे देंगे, आप उधर चले जाओगे, ठीक है, आप 3 महीने बाद वापस इधर ही आ जाओगे कि इसने ये रहना है। तो हमें हमेशा एक लॉन्ग विजन के साथ चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के साथ चलनी चाहिए। आई ऑलवेज से कि हिस्ट्री बहुत बड़ी चीज होती है सर। साथियों, इतिहास गवाह है कि आज 2021 से जब मैं एसोसिएट हूं, लोग मुझे बोलते थे सर आपसे पुराना अकाउंट दिखा। मैं आदमी दिखा रहा हूं यार, सांस लेता हुआ। क्या 2021 से पुराना आदमी है क्या सर? किसी का अकाउंट है क्या? मैंने कहा आदमी दिखा रहा हूं, आदमी देख लो ना आप। आदमी बोलता भी ये सारी चीजें, सांस लेता है, हाथ ऊपर है, सब है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि समय की अपनी व्यवस्था है। जिस दिन जिसको विश्वास करना होगा वो उस दिन हमारे साथ जुड़ेगा। अब मैं वही रामानंद सर वाली बात और प्रवीण सर जो हम हमेशा जूम पे नहीं फिजिकल मीटिंग में बोलते हैं, वही छाती चीर के मैं नहीं दिखा सकता सर, ठीक है। रजत सर उन्होंने ऐड भी किया कि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग मिलते ही रहेंगे सर। वो मिलते रहेंगे सर, बिल्कुल मिलते रहेंगे। ऐड किया है कि सर ये ऐसा नहीं कि हम इसको अवॉइड कर देंगे, ये तो हमारे साथ चलता ही रहेगा। देखा, आप कितना भी अच्छा करो उसमें भी कोई ना कोई चीजें आएंगी, तो ये तो चले, क्योंकि सर नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव तभी मजबूत तो है। पॉजिटिव है। ये बड़ी खूबसूरत बात बताई प्रवीण सर आपने कि इस बात के अंदर आपने ये तुरंत बात ढूंढी कि हाँ नेगेटिव भी तो लोग आते ही हैं भाई। आज हम भी लोगों को अगर ये कोई बंदा समझाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करेगा तो हम अपनी काबिलियत या किसी चीज को क्यों पूछेगा। आज रोहिणी मैडम को जरूरत क्या पड़ रही है सवाल पूछने की? ये उन्हीं लोगों के सवाल है जिनको पूछना चाहिए, इसीलिए तो हम ये पॉइंट रेज अगर वो सारे लोग ये सवाल रेज ही नहीं करते तो हम ये मीटिंग ही नहीं करते हाँ, और हमें ये सवाल पूछने नहीं पड़ते।
तो सर ये हमारा जब बाई पार्ट है, मतलब हम जब आगे बढ़ेंगे तो बोलते हैं कि नेगेटिव को तो लेके चलना पड़ेगा। रास्ता हमारा वही है सर, लेकिन नेगेटिव से निकलते हुए तो ये निश्चित है कि ये आएगा ही आएगा। और ये आज हम नहीं बोल रहे, आज पिचाई सर खुद बोल रहे थे कि बोला सर नेगेटिव थिंकिंग के लोग हमें मिलते ही रहेंगे, मिलते उसको रहेंगे। करना ही है, निश्चित है। आपको तो लगता है रजत सर कि लगातार अगर 10-11% प्रॉफिट आएगा तो नेगेटिव नहीं आएगा क्या? तभी आएगा। ये इतना एग्जैक्ट क्यों दिया जा रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक जैसा आ रहा है? तो वो ही है, चीजें चलेंगे। प्लीज मैडम, आगे का कोई सवाल है तो बताइए, प्लीज कंटिन्यू करिए। नहीं, सवाल के से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जी कि प्लीज। आपने जैसे बोला कि भाई सवाल जवाब थे तो आज ये मीटिंग करी गई। अब से ये मीटिंग नहीं होगी सर, क्योंकि 5 तारीख को, 5 दिसंबर, अजरबैजान ये तीनों आ रहे हैं। मैंने इनको तीनों को इनवाइट करा है, ठीक है ना। और मैंने इनको ये रिक्वेस्ट करी है कि आपको मैं 1 महीना पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है 1 दिन पहले 2 दिन पहले। मुझे नहीं मालूम, आई नीड माई पीपल्स वॉन्ट्स टू यू एज लाइव, ठीक है ना। मेरे साथी वहां पर आएंगे और दे नीड अ सेल्फी विथ यू ऑल्सो। तो उसके लिए सेल्फी बोर्ड भी मैंने बोला है, सारी चीज बताइए हमारी जो टीम है उनको, इवेंट वाली टीम को। और इनके साथ में पॉसिबिलिटीज ये है कि विजय सर का आज ही उन्होंने कंफर्म भी कर दिया था, अभी जस्ट मैसेज भी आ गया था, तभी मैंने तुरंत बोला, नहीं तो मैं ये बात बोलता भी नहीं कि भाई जो जा रहे हैं एक बार रुक जाओ, ठीक है। तो विजय सर का कंफर्मेशन आ चुका है। तौबे सर और मार्कस सर का ये बोल रहे हैं कि हम आपको नेक्स्ट वीक, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हम आपको कंफर्म कर देंगे, मोस्टली ये कह रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है साथियों, आप एक्सपो में हैं, आपको बहुत सारी चीजें जो है नए नए रोमांच मिलते रहने चाहिए। आई प्रॉमिस यू, आई मीन्स मैं रजत शर्मा आपको ये प्रॉमिस करता हूं, मेरी पूरी कोशिश है कि वी फाइंडिंग अ इंडेक्स मैनेजर ओवर देयर ऑल्सो। क्या बात वी है। फाइंड अ इंडेक्स मैनेजर, जो कि एक इंडेक्स मैनेजर है, वो आए वहां पर, वो चीजों को दिखाए, चीजों को बताए, लाइव हमें चीजें करके दिखाए, लाइव हमें बताए, लाइव हम उनसे मिलें। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उनसे मिलूं और हम बात करें, और मैं ये बताऊं कि भाई आज मेरे साथ में इतने सारे दिल धड़कते हैं, लोग मेरे साथ में हैं, ठीक है ना। वो एज अ करियर काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो ये बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम इनको सुन रहे हैं, कई लोग इनसे दुबई भी मिल चुके हैं, कई लोग इनसे अबू धाबी भी मिल चुके हैं, कई थाईलैंड में मिले हैं, और मार्कस सर और तौबे सर से ये सारे दुबई मिले हैं। लेकिन ये सुनहरा मौका है, जो व्यक्ति अजरबैजान टारगेट हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, अगर वो बाय पेड करके भी जाना चाहे और वो हमारे साथ चलना चाहे, इनसे मिलना चाहे, इनके साथ वो फ्यूचर देखना चाहे, वो फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहे, कि क्या पता उसको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा एक कुछ रुपए खर्च करने के बाद अगर मेरा जीवन बनता है तो उसको जाना जरूरी है, मैं ये मानता हूं। और अगर वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति, अभी तक मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन अगर पूरी कोशिश है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति वहां पर आ गया जो कि इंडेक्स मैनेजर हो, जो अपनी परफॉर्मेंस वहां पर हमारे सामने बताएगा, तो जाहिर सी बात है, देखिए मर्सिडीज की चाबी भी हम उससे दिलाएंगे, क्योंकि वो हमारा चीफ गेस्ट है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जो अजरबैजान वाला प्रोग्राम है उसमें मैंने इनको इनवाइट करा है, ये बिल्कुल आएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि साथियों मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, और जो सह जाएगा वो रह जाएगा। आपके लिए जान हाजिर है, अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नीतिबद्ध के साथ में मैं जान लगाऊंगा। अगर ये जूम कर सकता हूं तो मैं इनको भी बुला सकता हूं। क्या बात तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इनको बुलाऊं और ये वहां पर आए। अब वापस से क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन जो है, रोहिणी मैम प्लीज आप, जो कि आपने मार्कस सर से पूछा था। सर से पूछा था, ट्रस्ट के ऊपर पूछा था मैंने। उन्होंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ट्रस्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक चीज उन्होंने कहा, बहुत सी कंपनियां हैं ऐसी, कई सारी कंपनीज है मार्केट में जो वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। जैसे कि तोबियस सर ने कहा कि हम एनालिसिस करते हैं, उसी चीज को उन्होंने बिल्कुल रिलेट किया, मैच हो रही है दोनों की बातें, तो मिस्टर तोबियस की और मिस्टर मार्कस की बातें, कि एनालिसिस क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरा एंटायर मार्केट के बारे में जानना। तो ये चीज की, मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करती, जो यूज करना चाहिए वो जिनो पोर्टफोलियो यूज करता है। ये बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने बोला। हमारा जो है फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है, वी आर ट्रांसपेरेंट, हम चाहते हैं कि हमेशा एक गुड कनेक्शन बना रहे, इसीलिए हमारा सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। और इसके लिए तो सैल्यूट सर, आप लोग क्या कहेंगे सपोर्ट सिस्टम के बारे में,
कि रियली मैं तो सैल्यूट करती हूँ, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में प्रॉब्लम हमारे सॉर्ट आउट होते हैं जस्ट एक टिकट क्रिएट करने पर। जेन्युइन प्रॉब्लम। जेन्युइन प्रॉब्लम सर। हाँ, और इतनी खुशी मिलती है उस वक्त में कि हमको हमारे इन वर्ड्स को कितना, जो हम वहां पर फ्रेम करते हैं, लिखते हैं, उनको कितना वैल्यू वो दे रहे हैं। एक एक को सॉर्ट आउट करना, वर्ल्ड वाइड 45 लोग हैं, 1 लाख लोग तो टिकट क्रिएट करते ही होंगे, उनको एड्रेस करना, उनको सॉर्ट आउट करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें ज़ीरो पोर्टफोलियो के बारे में एक सही, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में हमको यहाँ से जजमेंट करना चाहिए, ना कि किसी और एंगल से। सर आप लोग क्या? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल। मैडम, जजमेंट करने का बोलते हैं ना, कब तक लोग जज करते रहेंगे? आपके सामने ये बंदा गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बैठकर काम कर रहा है, जजमेंट करने का समय नहीं है मैम, काम करने का समय है, ठीक है? मैं लोगों को यही बोलता हूँ बार बार, हाँ, क्या बात है। कब तक पोस्टमार्टम करते रहोगे यार? हाँ, काम करने का वक्त है, काम करो। सब कुछ तो मिल रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, ठीक है? यस रजत सर प्लीज, मैं सॉरी आपको रोक दिया था। नहीं 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 सर, ये तो जरूरी था रोकना। मार्कस सर का जो क्वेश्चन आंसर था वो कम से कम 100-200 लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने जो सरप्राइज सुना उसके बाद लेफ्ट हो गए। तो इसी क्रम के अंदर हम चाहेंगे एक बारी जोरदार तालियां इन तीनों शख्स के लिए, विचाई सर के लिए, मार्कस सर के लिए, तौबे सर के लिए। और इसी तरीके से साथियों, हम इसी में जो आगे है बढ़ चढ़कर और भी काम करेंगे। हम अपना फ्यूचर और हमारा आने वाला भविष्य इसके साथ में सेफ देखते हैं, और हम ये विश्वास दिलाते हैं अपने आप को कि रियल में कुछ नहीं करेंगे तो भी सोएंगे, कुछ करेंगे तो भी सोएंगे, ठीक है ना? अब इनके कहने के हिसाब से सोएंगे तो मजे लेंगे, जब ये बोल रहे हैं कि भाई आप टेंशन फ्री रहो, आप सोया करो आराम से। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने आज बताई है, जूम के माध्यम से बताई है। जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि नहीं जूम पे क्या पता रजत सर किसी और व्यक्ति को बिठाकर और उसके ऊपर बोले नहीं तुझे ये बात बोलनी है, तो प्लीज आप अजरबैजान चलें, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो हर बार बोलता हूँ भाई, मैं किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकता, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, और वो कहते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि नहीं सर मुझे और बिलीव करना है, मेरा थोड़ा सा बिलीव डगमगा रहा है, डगमगाना नहीं है सर, फ्लाइट पकड़नी है, अजरबैजान आना है, बढ़िया वहाँ व्यवस्था होगी, बढ़िया वहाँ पर सेमिनार होगा, बहुत भव्य प्रोग्राम भी होगा, उस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना है। और उस प्रोग्राम के हिस्से के साथ साथ हमें उन लोगों से, उन शख्सियत से मिलने का जो सुनहरा मौका मिलेगा, जो कि शायद तक जीवन में फिर मिले नहीं मिले, क्या पता दोबारा मिले तिबारा मिले, ऐसा नहीं है। आज जो मौका मिल रहा है, आज जो मौका मिल रहा है, जो ये मैं मौका आप लोगों को देना चाहता हूं एज अ लीडर, कि भाई आप लोग चलो अजरबैजान, लाइव देखो उन लोगों को, ठीक है ना? ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा साथी। क्या पता मेरे कहने पे उन्होंने किसी इंडेक्स मैनेजर से रिक्रूटमेंट करी, क्या पता उन्होंने बात करी कि भाई हाँ आपको भी चलना है, वहां पर इतने लोग आएंगे, ठीक है ना? इंडिया ये आते नहीं है, उसका सब रीजन भी जानते हैं, बेखूबी जानते हैं, दे आर वेरी इशू इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। लेकिन अजरबैजान जैसी कंट्री है, काफी अच्छी कंट्री है और काफी सूझबूझ वाली कंट्री है, वहां ये आ गए तो क्या पता हमें ये दोबारा मौका मिले। उस व्यक्ति को जो कि मार्केट में फील्ड वर्किंग कर रहा है, आज वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके सामने ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्या तू कभी किसी इंडेक्स मैनेजर से मिला है? क्या तूने कभी इसकी गूगल पे प्रोफाइल देखी? अरे जिंदा आदमी देख कर आया हूं भाई, मैं सांस ले रहा था, चल रहा था, बात भी कर रहा था, सेल्फी भी लिए। तो ये तमाम चीजें हमारे साथ में जो है, बड़ा काम करना है सर, छोटे से खर्चे से हटना पड़ेगा, इन चीजों को साइड रखना पड़ेगा, और बड़ा मुकाम हासिल करना है तो ये अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ सर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। एंड थैंक यू सो मच सर, रोहिणी मैम, रामानंद सर, प्रवीण सर। आज सर हम तीनों आर आ गए थे यहाँ पर, हमने सोचा आर 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 जैसे पिक्चर हिट हुई थी हम भी इसको जूम को हिट करेंगे, लेकिन पी आ गए तो आप हमारे प्रोड्यूसर हो गए, तो क्या आप आए हैं तो इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोहिणी मैम, थैंक यू रामानंद सर, थैंक यू प्रवीण सर। सबसे सर, पहले तो हम आप सब बस लोग एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ सर, आप बार बार बोलते हैं हाथ नहीं छोड़ना, साथ मत छोड़ना, और जो सह जाएगा और रह जाएगा। मैं बोलता हूँ सर, ये प्रॉमिस है, पथ नहीं छोड़ेंगे, प्रण नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ठीक है? यस रोहिणी मैम, नाउ कंक्लूड। थैंक यू सर, थैंक यू रजत सर, आपने हम लोगों को चुना कि आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि स्क्रीन में रजत सर है, परवीन सर है, रामानंद सर है, उनके साथ में मैं हूँ, ये मेरा सौभाग्य है सर। तो इसके लिए नहीं मैम, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
Thank you, sir. थैंक यू रजत सर। सबसे पहले Thank तो you, हम everybody. सबको एक ऐसा चांस देने के लिए, क्योंकि ये जो आपके आइडियाज हैं ये हमारे फील्ड में बहुत सारे काम आते हैं। अभी रामानंद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर भरोसा करने वाले हो सकता है फंड को देख के भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जिनको भरोसा दिल से है वो पिछले कई सालों के करियर को साइड रख के काम कर रहे हैं। राइट। रामानंद सर हो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं जो आज इसमें फेथ करके आज अपना करियर कर रहे हैं। इस सही है। इंडस्ट्री से पहले 15 साल हमने भी अपने लगाए हैं एक फील्ड में, लेकिन जब ये फील्ड को सिलेक्ट किया तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक बात का भरोसा था, आपके वर्डों का भरोसा था, आपके साथ का भरोसा था। विजय विजय जी के उस भरोसे भरोसा था उन वर्डों का जो विजय जी ने हमें दिया था। और आज सर वो 15 साल की जो मेहनत थी उसके ऊपर ये हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस भारी हो गया। तो मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, जिनको इसमें सब कुछ दिख रहा है वो सब कुछ अचीव कर रहा है यहाँ से। बस फिलहाल ये है कि जिसकी अभी भी जिसको जो नहीं कर पा रहा शायद उसको नहीं दिखा है जो उसको दिखना चाहिए, तो हो सकता है वो अजरबैजान में दिख जाए। बिल्कुल। आपको ये बात कंफर्म है कि सर जब तक आपको वो पल नहीं आएगा जिस दिन आपके पल में यू टर्न होगा, क्योंकि यहां बैठे हर शख्स, चाहे वो रजत सर हो, चाहे रामानंद सर हो या मैडम हो, इनको एक पल ऐसा आया कि जब इनको लगा कि यस अब ये करना चाहिए, ये बेस्ट है। अब वो पल हो सकता है किसी को अभी तक नहीं आया और वो बाकू जाके आ जाए। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि अगर वो पल आ गया तो एक बात की गारंटी है, आप अपने घर के उसी दिन से टाटा बन जाएंगे। राइट सर। क्योंकि क्योंकि सर जब मैं तक आपकी बात आप बताऊं जी, जी प्लीज सर। लोगों ने जब थाईलैंड अचीव करा था, थाईलैंड लोग गए, थाईलैंड के अंदर लोगों ने गाड़ियां जीती, प्राइजेस आए, उनके पास में सपने उनके साकार हुए, विच इज एक व्यक्ति के बड़े ही प्यारे से सेंटेंस थे। उसने ये चीज मन में सोची थी, कहते सर मैं मन में सोच के गया था कि अगर मेरा प्राइज मिला तो मैं वो प्राइज तो लूंगा नहीं, लेकिन उससे बड़ा प्राइज लेके दिखाऊंगा। जब व्यक्ति ने अपनी सोच ऊपर रखी, अ, उमराव सर की टीम से है, सरदार जी है, मैं नाम थोड़ा सा मैं भूल गया, सर ने, सर का जो प्राइज निकला था वो बुलेट निकली थी, रॉयल इनफील्ड। और उसने ये बात जो सोची थी वो पूरी हुई। उसने कहा भाई सच्चे बादशाह वाहिगुरु जाने, ठीक है, कि वो बात सत्य हुई। उसने XUV 700 निकलवाई। कहते सर मेरा सपना था, मैं ये सोच के रखा था कि अगर मेरा, क्यों, क्योंकि वो जो नाम मेरा वहां निकला एज अ अचीवमेंट, ठीक है ना, मैंने मेरा इतिहास रच दिया उसी दिन ही। और जिस दिन मैंने उस धरती पे पैर रखा था, थाईलैंड की धरती पे, कि इस प्रोग्राम में मुझे जाना है, ठीक है ना, और मैंने अपने साथ में जितने भी व्यक्तियों को लेके जाना है, ठीक है ना, उसने एक कसम खाई थी कि मैं इन लीडरों को, जो भी क्लाइंट उसके साथ, सॉरी लीडर बोल रहा हूँ, उन क्लाइंटों को मैं लीडर बनाकर ही लेकर आऊंगा। और रियल में आज उसका, आप भी खुद देखते हैं, आप खुद एग्जाम्पल से सर, कि थाईलैंड के अंदर जो प्रोग्राम हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम, अपने आप में बड़ा ही काबिले तारीफ प्रोग्राम। और उसकी जितनी भी आशंका हम करें, जितने भी वर्ड्स बोले उतने कम है, कम है। ठीक है। इस लेवल का प्रोग्राम करने के लिए, सहयोग देने के लिए आप सभी साथियों का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। और निरंतर ऐसी चीजें हम आगे करें। आज अजरबैजान जा रहे हैं, लोगों से, लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। यूरोप जाना लोगों का सपना होता है, आज वो जाएंगे, रियलिस्टिक देखेंगे, हमारा प्रोग्राम एंजॉय करेंगे, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और साथ ही साथ एक सुनहरा मौका, जो कि ये 2 दिन पहले जो आइडिया आया, और ये मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ओ मत बोलो। कोई भी काम आया, ओ यार ये तो काम कैसे होगा, ओ नहीं होगा, ये अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब कर लो तुरंत ही, कि ये काम होना चाहिए, कि ये व्यक्ति वहां पहुंचे। मैं मेरे जितने भी लोगों को लेके जा रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस जूम के माध्यम से, कि मैं जितने भी लोग आज वहां जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे, मैं उनका फ्यूचर उनको बता के कि भाई तुम्हारा ये फ्यूचर है, तुम ये लिख लो, और अगर नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।